डियर स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को आज हम न्यूमेरिकल मेथड्स के जो फॉर्मूले कल किया था, कल फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, उस फॉर्मूले को आज हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे। सेकेंड मेथड की कन्वर्जेंस कंडीशन हमने कल की थी। मेथड हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा, रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ा, और तीसरा जो मेथड है हमारा वो हमारा सेकेंड मेथड था, जो हम इस ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 4 sin x plus x square equal to 0. This is the transcendental equation solved by second method. Now first of all, we can write the formula of second method. Xn plus 1 equals to xn minus xn minus xn minus 1 upon f of xn minus f of xn minus 1 into f of xn for n equals to 1, 2, 3 and so on. This is the second method. But this method is also known as regular falsi method. Regular falsi method में हमने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि x0 और x1 एक इंटरवल लेते हैं और उसकी कंडीशन ये है कि f of x0 into f of x1 is less than 0. This condition must be satisfied for the regular falsi method. For the regular falsi method. This shows that is fx x0 and this is your x1. Let us suppose this one. So this is your f of x0 or this is your f of x1 or this is the root. This is the root x axis is 0. Means हमारा जो रेगुलर फाल्सी मेथड है, उस रेगुलर फाल्सी मेथड में जो इंटरवल हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस पे f of x0, let us suppose f of x0 is less than 0, f of x1 is greater than 0, f of x0 x1 is less than 0. This condition must be satisfied everywhere in regular falsi method. But in second method, this condition not fulfill. हम इस कंडीशन को सॉल्व नहीं करेंगे, इस कंडीशन को नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली हम इंटरवल तो फाइंड आउट करेंगे। We are giving fx equals to sin x plus x square. This is your fx. So हम लोग इसको सॉल्व इसलिए करेंगे कि जो रूट हमें निकालना है, जो रूट हमें निकालने के लिए हमें कंडीशन लेनी है, तो हम जानते हैं कि कोई भी रूट रियल रूट एक्स एक्सिस को कट करके ही निकलेगा, चाहे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव आए। सो हम इस कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, इस कंडीशन को लागू भी नहीं होगा, केवल हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम इस कंडीशन से x0 x1 की वैल्यू लेंगे। लेकिन यहाँ इसको सॉल्व कंडीशन को डालेंगे नहीं सेकेंड मेथड में। सो लेट अस सपोज f of -1 is sin of -1 plus -1 का स्क्वायर। This is trial method. F of -1, this is your minus 2.36588 और f of -2 is sin -2 plus -2 whole square, which is equals to 0.36281. ये दो कंडीशन हम इसलिए ले रहे हैं कि हम x0 x1 जो हमने इंटरवल नहीं है, दिस इज x0 x1 इज नॉट एन इंटरवल, बट बाय सॉल्विंग द सेकंड मेथड, इस सेकंड मेथड को यूज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x0 x1 ऐसे पॉइंट ले रहे हैं x एक्सिस पर, ताकि क्या है कि लेट अस सपोज दिस इज योर x0 एंड दिस इज योर x1 और इसमें कहीं नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है तो हमारे को कम इटरेशन में रियल रूट मिल जाएगा, कम इटरेशन में हमारे को रियल रूट मिल जाएगा। इसलिए -1 and -2 taking this interval or using this equation. So when you substitute in this equation of -1 and -2, therefore xn plus 1 means when you put n equals to 1, so हमारे पास क्या होगा, x2 equals to x1 minus x1 minus x0 upon f of x1 minus f of x0 into f of x1. This formula becomes in this form, or x0 is here, x0 is -1,
x1 is -2, f of x0, is means minus, this is your f of x0, or this is your f of x1. Now all the values putting here, x2 equals to x1 is -2, -2 minus of -1 plus 1, f of x1 is 0.36281 minus plus 2.36588 into f of x1 is 0.36281. After solving this x1, this is equals to -2 plus 0.13296, and then again solve minus 1.86704. This is your x2, 86704. Then f of x2 equals to, when you put here in this form, sine of x is minus 1.86704 plus minus 1.86704 whole square, and after solving this we get minus 0.33992. This is your f of x2. Now using this third condition in this formula, and we can find the value of x3 equals to, when you put n equal to 2, x3 equals to x2 minus x1 upon f of x2 minus f of x1 into f of x2. So this implies ये हमारे पास x2 है, this is your f of x2, और आपको क्या यूज करना है, x1 जो होगा वो -1 था, -2, x1 is -2, और f of x1 is this 3.681. So x2 equals to अपने पास क्या आया, -1.86704. This is the value of f of x2. Minus x2 is minus 1.86704 minus x1 is minus plus 2 upon f of x2 is minus 0.33992. This is f of x2, and f of x1 is minus 0.36281 into f of x1. Again f of x1 is this one is 0.x2, ये वाला minus में, तो minus plus 33992. This is the value of x2. ये x2 यहाँ से देखिए, ये अपने पास x2 है, फिर x2 minus x1 जो हमारे पास x0 is -1 and x1 equals to -2. So x1 is -2 means +2 upon f of x2 is minus 0.33992 minus f of x1 means इस 2 पे जो वैल्यू थी this one, so minus 36.281 into f of x2 is this, so minus plus. After solving this we get minus 1.86704 minus 0.06431, and after solving minus 1.93135. This is your x3. So x3 equals to this, so f of x3 equals to sine of minus 1.3135 plus minus 1.391931 into 35 whole square. Or solving this we get minus 0.01269. So this is your x3. Now using this x3 अगेन इसको यूज करेंगे, तो हमारे पास देखिए, मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ x0 which is equals to -1. तो f of -1 जो अपने पास होगा, f of -1 equals to था -2.36588. This is x0, this is x1, f of -2, so f of -2 equals to 0.63281.
then x2 equals to minus 1.86704. तो f of minus 1.86704 equal to minus 0.3399 and 2, and we can change. This is your x2. Again x3 equals to minus 1.93135, then f of minus 1.93135 equal to minus 0.01269. This is your x3. Now we find the value of x4. Using this formula. So x4 equals to x3, when n equal to 3, you get x3 minus x2 upon f of x3 minus f of x2 into f of x3. Now x0, x1, x2 ये अपने पास वैल्यूज गिवन है. इन वैल्यूज का यूज करते हुए आप इनको पुट करें इसमें. देन x3 is minus 1.93135 minus 1.93135, then again x2, so plus 1.86704 upon f of x3 is minus 0.01269 minus f of x2 is minus plus 0.33992 into f of x3 is minus 0.01269. आप ये देखिए, मैंने केवल ये वैल्यूज पीछे से लेके इसमें सब्स्टिट्यूट की है और सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने पर आपके पास x4 की जो वैल्यू होगी वो x4 इज गिवन बाय दिस इक्वल्स टू minus 1.93384 और f of x4 equals to in sign of minus 1.93384 plus minus 1.93384 whole square. After solving this, we get 0.00045. This is your f of x4. So x4 is given by minus 1.93384 and f of minus 1.93384 equals to 0.00045. This is x4. Now again using these values in this formula to find out the value of x5, हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने दो इंटरवल फाइंड आउट किया. इंटरवल फाइंड आउट करने का वैसे तो सेकेंड मेथड में कोई ज़रूरत नहीं है. सेकेंड मेथड में हम लोग केवल डायरेक्टली आप कोई भी दो वैल्यूज ले सकते हैं, उन पे वैल्यूज पे आप इसको अगले इटरेशन निकाल सकते हैं. लेकिन हमने क्या किया, हमने एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन इसलिए लिया कि आपको इटरेशन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना पड़े, इसलिए हमने इसको इटरेशन को लिया. नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x5 equals to x4 minus x3 upon f of x4 minus f of x3 into f of x4. अब आपके पास पीछे वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज से सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे. सो देयरफॉर x4 is minus 1.93384 minus 1.93384 minus plus 1.93135 upon f of x4 is 0.00045 minus f of x3 is minus plus 0.01269 into f of x4 is 0.00045. This value, when you substitute here, then x5 is, after solving x5, equals to minus 1.93375 and f of minus 1.93375 equals to sine of minus
1.93375 और प्लस माइनस 1.93375 होल स्क्वायर. Then after solving this we get minus 0.0004 per 0 and 2. So this is your x5. x5 is minus 1.93375. So f of minus 1.93375 equals to minus 0.8234 and 2. तो 4 बार 0 मिला के 2 है. This is your x5 and find out the value of next x6. x6 using these values also. So therefore using these values से हम आगे देखें तो x6 equal to x5 minus x4 upon f of x5 minus f of x4 into f of x5. हमने इसकी वैल्यू को कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए हम इसी को देखते जाएंगे और ये अप टू 4 डेसिमल तक इसको इक्वल आ जाए जब तक हमें करते चले जाना है. सो दिस इज इक्वल्स टू minus 1.93375 minus 1.93375 and plus 1.93384 upon f of x5 is minus 0.8234 then minus 0.00045 into minus 0.00002. This is your x5. f of x5, f of x4, this is x5, this is x4 and so on. And solving this x6 equals to, solving this x6 equal to, we get minus 1.93375. Then f of minus 1.93375 equals to sine of minus 1.93375 and plus minus 1.93375 whole square. So using this is your minus 0.00002. Now x6 is minus 1.93375 or f of minus 1.93375 equal to minus 0.00002. So अभी देखिए इस रिजल्ट के अंदर अपन देखते हैं, हम इस रिजल्ट में देख रहे हैं कि x5 और x6 these two values are बिल्कुल सेम है. इस ब्रैकेट से आप चेक करिए यहाँ पे कि x5 की जो वैल्यू है वही x6 की वैल्यू है. सो दिस इज द रियल रूट व्हेन टू रूट्स are equal. So x5 and x6 are equal. So therefore this is the real root of this equation. By secant मेथड. तो आपने देखा सेकेंड मेथड के थ्रू हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हमने एक इंटरवल लिया. इंटरवल इसलिए लिया कि ताकि आपको रिजल्ट आसानी से निकल सके. और एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू रेडियन में लेनी है. चाहे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, हाइपरबोलिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हैं हमारे, उनकी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में मोड चेंज करना है. मोड चेंज करके आप रेडियन में, नॉट डिग्री, इन डिग्री, रेडियन में इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और साइंटिफिक कैलकुलेटर के यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे. तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये जो थर्ड मेथड था हमारा, फर्स्ट मेथड बाइसेक्शन मेथड, सेकंड हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड और थर्ड हमारा सेकंड मेथड. तो हमने देखा कि रेगुलर फॉल्सी मेथड इज सेम एज सेकंड मेथड, बट व्हेन यू टेक एन इंटरवल, सो दिस मेथड इज ऑल्सो सेम एज रेगुलर फॉल्सी मेथड. अब अगर आप ये इंटरवल काम में लेते हैं तो आपका ये सेकंड मेथड ना होकर रेगुलर फॉल्सी मेथड से भी इसी तरीके से आपका सॉल्यूशन निकलेगा. लेकिन यदि आपने इसको सेकंड मेथड से नाम से आ रहा है तो ये आप इसको रफ वर्क करके इंटरवल -1 और -2 पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव और वो कंडीशन चेक कर लें, केवल कंडीशन चेक करने के लिए. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको नहीं करना है, केवल डायरेक्टली 2 पॉइंट लेके आप इसका किसी भी रियल रूट निकाला जा सकता है. थैंक यू. इसी तरीके के आप क्वेश्चंस, आप और बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. 2 वैल्यूज जब तक इक्वल ना आ जाए तब तक आप इसको कैलकुलेट करते चले जाएं.
और आपका आंसर आएगा। थैंक यू।